As we know, woman, a beautiful creation by the Almighty Allah. We know woman is the most wonderful creation of God, a living being born to sustain other creatures. And due to this valuable role of hers, God has placed her at the topmost position upon whom the survival of other beings is possible. Every woman has her own capabilities. She has her own capacity. She has her own sensation and her own beauty. Since childhood, she proves to be a responsible family member. In her youth, an aware citizen, and after marriage, she plays the role of a savior, that is the life giver. But as we say, we are in the modern world, still there is miserable plight of woman in today's setup. The society has always proved to be male dominating. Due to this, all her aspirations and desires are being buried in the dearth of demands of the males. Most of the times, she has to undergo physical torture and goes through the atrocities like dowry, humiliation, harassments, and even teasing. This has proved a curse to whole mankind, that a sin is committed against the girl and woman, whom God regarded as the exuberant creation by all regard. Now, I will just ask a question. We are talking about the woman empowerment. Does woman empowerment mean that we are giving them right to education? Does it mean we are giving them right to vote? Is woman empowerment? No, definitely. Because these are the elements that no one in the world can snatch it from you. Even a male can vote, a female can vote. Even you can go for the education, female can also go for the education. जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो पहले यही बोलते हैं कि इस बेटी ने एक बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोला है. जब मर्द पैदा होता है ऐसा कभी नहीं कहा जाता. We live in a society where we hardly stop any woman for enjoying her rights, like right to education, right to vote, right to speak. These are rights. But what things hinder is the first and foremost is the perception. We have to change our perception. जब भी हम जैसे अभी बताए कि 6 बजे के बाद अगर ये जो औरत है इसने जहाज़ भी चला लिया, ये स्पेस में भी चली गई, इसने ओलंपिक में मेडल भी लाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती है. As we say, we live in Azad Hindustan, isn't it? But really I will ask the questions in the audience जो वहाँ पे फीमेल बैठी है. क्या आप सच में आज़ाद है? Do you feel? Do you feel? Anyone? क्यों? The reason, जब भी ये बाहर चली जाती है तो वहाँ वैशी दरिंदे होते हैं. जैसे मैं ये बताऊं कि हर कोई ऐसा नहीं होता है. जैसे हम बताते हैं कि दाढ़ी वाला चोर है. सर दाढ़ी वाला चोर नहीं है, चोर ने दाढ़ी रखी है. तो देयर आर गून्स इन एवरीवेयर, इन एवरीवेयर, चाहे वो कोई भी हो. मैं किसी रिलीजन टच इसको नहीं देना चाहूंगा. कोई भी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, हर कहीं पे चोर है, हर कहीं पे वैशी दरिंदे हैं. और ये औरतें जब भी ये लड़कियां बाहर जाती हैं, क्या इनको घर वाले कभी ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं आप 10 बजे भी आ जाओ, कोई मसला नहीं है? क्यों? क्योंकि ये एक खौफ में जी रहे हैं. क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है वो अभी हमने चेंज नहीं किया है. और हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं एक चीज आपको बता दूं. अगर किसी के घर लड़की पैदा होती, बहुत सारे ऐसे हम इंट्रोवर्ट टाइप
होते हैं और कंजर्वेटिव टाइप फैमिलीज कश्मीर में सबसे ज़्यादा होती है। तो जब बेटी पैदा होती है तो आप उसको गाइड करते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, बेटा स्कूल में जाना, लड़कों के साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं, अपने फ्रेंड्स देख के बनाना, ऐसे करना वैसे करना। रियली आप सब तो फैमिली मेम्बर्स है ना, हर किसी के घर में कोई बेटी, कोई बहन, कोई कज़न तो होगी। आपने किसी को ऐसे एडवाइस तो दिया होगा, लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपने कभी अपने बेटे को नसीहत की अगर बाहर कोई लड़की है इसकी तरफ बुरी नजर से नहीं देखना? आपने कभी अपने बेटे को ऐसी नसीहत की? सो दिस इज एम्पावरमेंट। वी हैव टू मेक ए प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन फ्लाई। हमें, अगर ये लड़की हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी कजन है, जो भी है, चाहे हमारी फ्रेंड भी है, चाहे सोसाइटी में है, अगर ये उड़ना चाहती है तो इसके लिए हमें पंख बनना है। अगर ये तैरना चाहती है तो इसके लिए हमें लहरें बननी है। अगर ये रोड पे, सड़क पे दौड़ना चाहती है तो इसके लिए हमें एक हमवार सड़क बननी है। सो दैट इज रियली व्हाट वी मीन द वुमन एम्पावरमेंट। आपसे कोई ये राइट टू एजुकेशन नहीं छीनेगा, आपको कोई ये नहीं, आप आज सोसाइटी में हर कोई, जब आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोई आपको ये नहीं बोलता है ये मेल है तो मेल स्टूडेंट हमारे पास 10 आ गए, बस बस अब रहने दो, इससे आगे जितने भी आएंगे मेल आएंगे। नो, कभी भी कोई रेशो स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं किया जाता है। ये हक आपसे कोई नहीं छीनेगा। बट वुमेन एम्पावरमेंट इज टू एम्पावर द वुमन वेयर दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस दैट व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम। सो दे शुड हैव दिस फ्रीडम। अगर वो आसमान में उड़ना चाहती है तो उसके लिए जो फैमिली मेंबर्स है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए कि वो अपना सब कुछ दांव पे लगाए और उसको आकाश में उड़ने दे। A woman is like a tea bag. You cannot tell how strong she is until you will not put her in hot water. It's like you cannot imagine how strong a woman is. You cannot imagine how strong a woman is. You cannot imagine the pain that she experienced during her pregnancy. You cannot imagine the pain that she is carrying during her periods. And even you cannot imagine the pain that a woman experiences when she gives birth to a baby. आपको पता है जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है उसमें कितना पेन होता है? एग्जाम्पल है कि अगर एक जिंदा इंसान पे पेट्रोल छिड़का जाए और उसको जलाया जाए, जो वो पेन एक्सपीरियंस करेगा, सेम पेन उस औरत को तब होती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। और अगर यही पेन एक मेल को दिया जाए, वो मर जाएगा। ही कांट बियर सच पेन। और ये पेन इतना पेन होता है कि अगर एक इंडिविजुअल में 40 हड्डियां एक साथ फ्रैक्चर हो जाए तो उतना, अगर हमें थोड़ा सा जख्म भी आ जाता है तो वी कांट बियर दैट, तो हम बैंडेड वो सब लगा लेते हैं। लेकिन एक, जस्ट इमेजिन, एक इंसान की 40 हड्डियां, 40 बोन्स गॉट फ्रैक्चर्ड, उससे जितना पेन होता है वो तब होता है जिसको हम बोलते हैं लेबर पेन, जब एक माँ जो होती है वो जन्म दी। और हम कहते हैं कि औरत स्ट्रांग नहीं है। और आपसे मैं कह रहा हूं, जो भी यहां बैठे, don't ask for right to education, right to equality and all that. You are beyond that. You had crossed that limits. But what the thing is that you make your own platform. अरे लड़कियां ऐसी है जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है। You have to create your own history. And we know, जब भी हालात यहाँ पे कुछ खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा जो होती है, अगर कल भी किसी ने बताया था कि लाल बाजार साइड से वो ड्रग का जब हुआ था तो थाने पे कौन गया था, माँ या बाप? माँ गई थी। तो बहन जो होती है, ये आई विल जस्ट नरेट, मैं अपनी एक स्टोरी बताऊंगा सर। आई एम 3 times इंटरनेशनल प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट। आई हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वर्ल्ड लेवल. I have been the recipient of Best Player of J&K by Honorable Chief Minister at the then Ghulam Nabi Azad, and recently from Lieutenant Governor Sahab. It's talk of 2006. मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना था ताशकंद, उज्बेकिस्तान. I belong to a middle class family. I was in 12th class at that time. जब मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, मेरी पहले नेशनल में मेडल आया था, फिर उसके लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुई थी, तो मुझे 80,000 रुपीज़ चाहिए थे वहाँ जाने के लिए. तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था. विद इन
नो टाइम मैंने पासपोर्ट भी बनवाया. अब फाइनली पैसों की ज़रूरत थी. तो पैसे कहाँ से आते हैं? यू कांट इमेजिन. मेरी बहन की शादी होने वाली थी तो घर वालों ने कुछ गोल्ड पहले ही जमा करके रखा था एंड दे सोल्ड दैट गोल्ड. और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए गया और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके वहाँ पे वर्ल्ड में 4th पोजीशन लाई थी. कौन थी? बहन, एक औरत जिसने वो कुर्बानी दी. Now you have to respond towards society. Now how is that? Now it's time for action. This is the hour to prove that the delicate and sensitive girls can take revenge for all injustice which is being done to them. Education plays most important role. Like sir, there should be seminars, there should be workshops in the schools, in the education institutions. और जो मीडिया है, मीडिया हर कोई न्यूज़ कभी भी कोई छापता है, बट अगर मीडिया इसमें आगे आ जाए और हर रोज़ एक मोटिवेशनल स्टोरी आ जाए, हर रोज़ जो जैसे कि औरतें जो है वो कैसे अपने आप को समाज में आगे कर सकती, या कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने रखी है. तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स या बहुत सारे वर्कशॉप्स स्कूल में किए जा सकते हैं जिससे हम जो बच्चे हैं उनको अवेयर कर सकते हैं. एंड also the support from the family and society enables the confidence in them to face the unwanted elements from the society. The one most important thing is that we should impart training to the females in the schools, like self-defense will play the most important part in that. If every woman on this earth is self-equipped and prepared to hit hard, then no male will dare to commit crime like rape, molestation and the domestic वायलेंस. जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे अपना हक दे दो, आपको आपके हक से कोई नहीं छीनेगा, बट आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आपका नाम हिस्ट्री में दोहराया जाए. बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका नाम हिस्ट्री में लिखा गया है. आई विल कोट फ्यू ऑफ देम. आनंदीबाई गोपाल राव, द फर्स्ट फिजिस्ट ऑफ इंडिया, जो पहली फिजिस्ट बनी इंडिया की. मदर टेरेसा, जिसने पूरी इंसानियत को अपने गोद में संभाल लिया. मैरी कॉम, 3 बच्चों की मां, 5 बार बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन. तो उनकी करेज देखिए. आई हैड मेट हर सो मेनी टाइम्स. आई हैड अ स्पारिंग विद हर आल्सो. मैंने उसके साथ बॉक्सिंग भी की है. कल्पना चावला, रानी ऑफ झांसी, किरण बेदी एंड जस्टिस एम फातिमा बीवी, जो इंडिया की पहली फीमेल जज बनी थी. मैं आपको एक स्टोरी नरेट करूंगा कि आप जो औरत है इसमें कितनी हिम्मत होती है. एक लड़की ट्रेन से जा रही थी. शी वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर. जब वो ट्रेन से जा रही थी तो कुछ चोर वहां पे ट्रेन में थे. जो चोर वहां पे थे उन्होंने उसकी जो चेन थी वो खींचने की कोशिश की थी, टू स्नैच दैट. प्लेयर थी, स्पोर्ट्स प्लेयर थी, वापस तो जवाब देना था. तो उसने उनको पकड़ने की कोशिश की, बट समहाउ उन्होंने उसको धक्का दिया और वो ट्रेन से नीचे गिर गई. जब वो ट्रेन से नीचे गिर गई, वहां से और एक ट्रेन आई. तो जो ही ट्रेन आपस में उन्होंने क्रॉस किया, अब वो उठने लगी. जो ही वो उठने लगी वो गिर पड़ी. एंड व्हाट शी एक्सपीरियंस कि उसकी जो टांग थी वो ट्रेन के नीचे आई थी और वो कट गई थी. जब उसने अपनी टांग को ऐसे खींचने की कोशिश की, दैट वाज हैंगिंग फ्रॉम द जीन्स. जो उसने जीन्स पहनी थी वो हैंग हुई थी. और वो कहती है कि मैं चिल्लाती रही कि मेरी मदद करो, कोई नहीं आया. द इमेज इज देयर. कोई नहीं आया, इसकी मदद के लिए कोई नहीं आया. बट समहाउ ये अब थोड़ी सी बेहोश होने लगी. और बेहोशी की हालत में आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे जो है वहां पे ट्रेन में बहुत सारे चूहे होते हैं. और ये बोल रही कि चूहे आ रहे थे मेरे पास और मेरी टांग को कुरेद रहे थे. जब वो मेरी टांग को कुरेद रही थी, मैं खाली इसको फील कर रही थी. आई वॉज जस्ट फीलिंग दैट दे वर स्नैचिंग माई मीट फ्रॉम माई लेग. वो उसके फ्लश, दे वर स्क्रैचिंग हर फ्लश. और समहाउ वहां पे जो रेलवे कर्मचारी थे वो वहां पे आ गए और उन्होंने उसको उठा के हॉस्पिटल ले लिया. तो ये 2011 की बात है. जब उसको हॉस्पिटल में ले लिया तो 4 महीने वो वहीं पे रही.
4 महीने के बाद वो अपने आप से सोचने लगी, यार मैं बच क्यों गई। आप इस स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। वो सोच रही थी कि मैं क्यों बची, अगर मुझे भगवान ने बचाया है, अगर मुझे ऊपर वाले ने बचाया, इसके लिए कोई मकसद होगा। अब वो बास्केटबॉल प्लेयर थी, बास्केटबॉल नहीं खेल सकती थी, तो उसने क्या किया, बोला नहीं मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। यार एक लड़की जिसके पास एक टांग नहीं है, जहां 2 टांगों वाले भी जाने से घबराते हैं, और जब ये सोच के ये निकली अपने इस हॉस्पिटल से, सबसे पहले इसको 4 महीने हॉस्पिटल के बाद इसको कहां जाना था, घर, बट ये गई बचेंद्री पाल के पास, जो पहली इंडियन वुमन थी जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। जब ये उसके पास गई, बोला मैडम मैं जी माउंट एवरेस्ट समिट करना चाहती हूं। बोला रे माउंट एवरेस्ट तो तुमने खुद के लिए समिट किया, ये सोच के ही तुम्हारे दिमाग में जब ये ख्याल आया तुमने तो ये क्रॉस किया, बट अब लोगों के लिए करना है। और मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, खाली माउंट एवरेस्ट नहीं, वर्ल्ड की जो भी हाईएस्ट 4 पीक्स थी वो इस अरुणिमा जो सिंह थी इसने वो क्रॉस किया। तो ये होता है कि आप ये मत सोचिए कि आप सोसाइटी में, समाज में पीछे। नो, विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वुमन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, दे आर इक्वल। विद दीज वर्ड्स मैं लास्ट पे एक कोट बोलना चाहूंगा, इट्स फॉर द फीमेल्स। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पांव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, पांव पे छाले हैं, सांसें हैं बुलंद, लड़ने चली हूं आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद रहना है मुझे। थैंक्स।